Good afternoon, everyone. This is the sum we will be doing now. The sum is there in front of your screen. Amit Traders and Sumit Brothers. Amit Traders and Sumit Brothers to amalgamate on the following terms and conditions on 1st April 2013 when their balance sheet were as follows. Means there is two businesses, one Amit Traders का और दूसरा सुमित ब्रदर्स का. ये दोनों सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस करती होगी. दीज आर बोथ ऑफ देम अमालगमेट. ये दोनों बिजनेसेस अमित ट्रेडर्स एंड सुमित ब्रदर्स amalgamate on 1st April 2013 when their balance sheets were as follows. How is their balance sheet? Amit Capital 26,400 and Anil Capital 33,600. Means in Amit Traders there are two partners, Amit and Anil, and in Sumit Brothers there are two partners, Sumit and Sunil. सुमित एंड सुनील, सुमित में पार्टनर्स हैं, अमित एंड अनिल Amit Traders में partner है. Then we have creditors which are there in both the firm, and there is a bank loan which is there only in Amit Traders. And then when we come to the asset side, we have building which is there only in Amit Traders. Then there is furniture in both the firms. Investment is there only in Sumit. Stock, debtor, cash. These are the other assets. Now, terms of amalgamation दिया है. Under terms of amalgamation, what they have given that in case of Amit Traders, goodwill was valued at rupees 20,000. Means Amit Traders को goodwill के लिए 20,000 मिलेगा. And Amit took over the bank loan. यहाँ पे दिख रहा है बैंक लोन है 12,000 का. इसको कौन लेके गया? लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर. मीन्स न्यू फर्म ये लाइबिलिटी को लेके नहीं जाएगा. दिस लोन विल बी टेकन ओवर बाय अमित. This loan, Amit is the partner in the old firm. So Amit will take over the bank loan. तो bank loan जो है will not come in the purchase consideration because it will be taken over by one of the partner. उसके बाद बिल्डिंग वॉज टेकन टू बी वर्थ ₹60,000. सो बिल्डिंग 25,000 का था, इसका नया वैल्यू विल बी 60,000. स्टॉक टू बी वैल्यूड एट ₹12,600. तो स्टॉक का नया वैल्यू दिया है 12,600. सो वी विल टेक द न्यू वैल्यू. And provision for doubtful debts to be created at 5% on debtors. Means अमित में जो debtors है 32,000, उसमें 5% provision for doubtful debt has to be created. Means we have to, from the debtors we have to minus 5%. From the debtors when we minus 5%, हमें मिलेगा न्यू डेटर्स जो पीसी में आएगा. नेक्स्ट, ये तो अमित ट्रेडर्स के लिए था. सेकेंड पॉइंट दे हैव गिवन अबाउट सुमित ब्रदर्स. तो गुडविल का वैल्यू इज 30,000 फॉर सुमित. इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म एट 30,000. इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू हैज बीन गिवन, न्यू वैल्यू हैज बीन गिवन 30,000. स्टॉक का न्यू वैल्यू हैज बीन गिवन 32,000. एंड दे से provision for doubtful debt to be created at 5% on debtors. मीन्स यहाँ पे भी debtors 62,000 है, उस पे वी हैव टू क्रिएट 5% का डाउटफुल डेट्स. मतलब डेटर में से 5% माइनस करना है एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. देन अहेड व्हाट थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? इट वॉज फर्दर डिसाइडेड that the total capital of the new firm shall be rupees 2 lakhs. What is the new capital? What is the new capital of the new firm? 2 lakhs.
in the previous sum which we have done, there also new capital was given. In this sum also, the new capital is fixed at 2 lakh, and the capital of each partner shall be in profit sharing proportion of 1 is to 1 is to 3 is to 3. Can anyone tell me ये 1 is to 1 is to 3 is to 3 ये क्या है? What is this 1 is to 1 is to 3 is to 3? Can anyone tell me? What is this 1 is to 1 is to, yes, which ratio? Which ratio? लेकिन old या new? Is this a new profit sharing ratio? Yes, correct. This is the new profit sharing ratio. ओल्ड रेशो नहीं दिया हुआ है इन दिस क्वेश्चन, द ओल्ड रेशो नहीं दिया है, तो वी विल अज्यूम द ओल्ड रेशो टू बी इक्वल. Because the old ratio is not given in the question, we will assume the old ratio to be equal. और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि जो भी डिफरेंस रहेगा बिटवीन द ओल्ड कैपिटल एंड द न्यू कैपिटल, ओल्ड कैपिटल एंड न्यू कैपिटल के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा विल बी ट्रांसफर्ड टू देयर रेस्पेक्टिव करंट अकाउंट्स. मीन्स यहाँ पे वी विल नॉट डू द एडजस्टमेंट इन कैश. हम जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो कैश में पे नहीं करेंगे, बट व्हाट विल बी वी विल बी डूइंग इज, जो भी डिफरेंस आएगा विल बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अकाउंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स इन द न्यू बैलेंस शीट. मतलब कैपिट जो भी हमें यहाँ पे हमें 2 लाख को फिक्स्ड मान के, फिक्स्ड कैपिटल मेथड वी हैव टू क्रिएट करंट अकाउंट्स. हमें करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर डिपेंडिंग अपॉन द difference between old capital and new capital, we will be transferring all the difference in what you say current account. ये कैसे करना I will be showing when we will doing the sum. Now what are you required to do? Show ledger accounts in the books of Amit Traders and Sumit Brothers, that we and balance sheet of the new firm after amalgamation. See, they will never say purchase consideration निकालो. दे से लेजर अकाउंट्स बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, बट कंपलसरी है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना. बिकॉज विदाउट परचेज कंसिडरेशन हम आगे ही नहीं जा सकते हैं. सो ए इसमें क्या आएगा, ऑल असेट्स इन all assets taken over by new firm in revised or book value, in revised or book value. So we will go to the question and we will say, see कौन सा पहला asset है, building, and building का नया value दिया है, and building is there only in Amit, and Amit में new value is given. See here, building to be taken over, taken to be worth 60,000. So I will go to the purchase consideration. I will write building, and building ka new value has been given. How much is the new value? 60,000. There is no building in Sumit. So total will come to, the total will come to 60,000. 60,000. Now we will go again to the question and we will see second one is furniture. Furniture का नया value दिया है. Is the new value of furniture given? See, new value of furniture तो हमारे पास यहाँ पे A से E तक points है, यहाँ से A से D तक. Anywhere new value is not given. When new value is not given, we have to take the old value. So furniture 11,500 and 27,000. So we will write furniture 11,500, 11,500 and 27,000. Correct na? 11,500 and 27,000. So what will be the total, like you have given, it is 38,000
दिस 38,500 वेरी गुड. जब ऐड करेंगे तो वी विल गेट 38,000, सॉरी 38,500. Now after furniture, what is the next asset given? After furniture, what is the next asset given? Investment. So investment का नया वैल्यू है क्या? देखो, इन्वेस्टमेंट इज देयर ओनली इन सुमित. सो हमें इन केस ऑफ सुमित में देखना पड़ेगा. ये सुमित इन्वेस्टमेंट्स न्यू वैल्यू इज गिवन 30,000. So we will go to the purchase consideration. We will write down investments. Investments is there only in Sumit. So we will write here 30,000. So it will be here 30,000. After this 30,000, what is the next asset given? After 30,000 investment, we have stock. स्टॉक का नया वैल्यू दिया है 12,600 इन केस ऑफ अमित, and in case of Sumit it is 32,000. Amit 12,600, in Sumit 32,000. So stock का नया value is given. So stock का new value is 12,600. Stock's new value is 12,600 here in Amit. And how much was in Sumit? 32,000. Sumit, it is 32,000. Add both of them. Add both of them. How much you get? 44,600. 44,600. Now let us see what is the other asset given. Stock के बाद it is debtor. Debtor पे we have to create 5% RDD. दोनों जगह बोला है. तो 32,000 और 62,000 में 5% RDD चार्ज करके बताओ, 5% माइनस करके बताओ. Debtor 32,000 and 62,000 में -5% करो. How much are you getting? -5%. How much are you getting? uh, Stock is 32,006. No, stock is 32,000 given in the question. See, stock was valued 32,000. New value is given. जब नया वैल्यू दिया रहेगा तो हम ओल्ड वैल्यू नहीं लेंगे दीपांजलि. वेन एवर न्यू वैल्यू इज गिवन, वी विल टेक द न्यू वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू. So what you get for this one, debtor, after minusing the RDD 30,400 and 62,000 में भी RDD 5% माइनस करो. 60,000 में भी RDD माइनस करो. हाउ मच यू विल गेट? 58,900. Is it coming? 58,900. Okay. Now add both of them. Add both of them. How much are you getting? Add both 58,900 and 30,400. How much are you getting? You're getting 88, no, 89,300. Correct. 89,300. Correct. 89,300. Now let us see after debtor, which is the other asset in the question. See, whenever new value is given, we write the new value. If new value is not given, we write the old value. अगर न्यू वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू, बट अगर न्यू वैल्यू दिया है तो न्यू वैल्यू लिखना है. अब कैश का तो न्यू वैल्यू नहीं है, सो वी विल टेक द ओल्ड वैल्यू. कैश का क्या ओल्ड वैल्यू है? 11,400 and 21,900. So we will write here cash. We will write here cash. What is the amount for cash? 11,400 and 21,900. दोनों को ऐड जब हमने किया, वी गॉट 33,300. आफ्टर कैश, कैन एनीवन टेल मी और कोई असेट बचा है? बिकॉज बैलेंस शीट में तो जितने असेट से हमने सब लिखा. इज देयर एनी अदर असेट लेफ्ट आउट जो हमने अब? यस, वेरी गुड. गुडविल. गुडविल अभी हमने लिखा नहीं है. 20,000 and 30,000. So what additional we have to write here? Because the new firm is paying goodwill additional, so that will come
20,000, that will come as 20,000 and 30,000, दोनों को ऐड किया तो it is 50,000 and done. This much is given. Now what we will do, total चाहिए, so total को we will call A. सेम वे इसके बाद आने के बाद we will less B all external liabilities, all external liabilities taken over by new firm in revised, if given revised value, not given then book value. तो हमें देखना पड़ेगा हमारे पास कौन सा लाइबिलिटी है, हमारे पास कौन सा लाइबिलिटी है, लेट अस सी. हमारे पास लाइबिलिटी में कैपिटल है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है. तो क्रेडिटर वी विल हैव टू राइट न्यू वैल्यू नॉट गिवन, तो ओल्ड वैल्यू 21,500 एंड 51,500. लेट मी फर्स्ट राइट क्रेडिटर. सो यहाँ पे लाइबिलिटी में कैपिटल एंड क्रेडिटर इज देयर. सो कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा. सो क्रेडिटर का अमाउंट कितना देखा हमने, 21,500 and the second column it is 51,500. दोनों को when we add we get 73,000. दोनों को when we add we get 73,000. and question में one more liability is there, bank loan. बैंक लोन 12,000. बट क्वेश्चन में बोला गया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक अमित टुक ओवर द बैंक लोन. जो बैंक लोन है वो अमित ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया दैट ही विल पे द बैंक लोन. सो न्यू फर्म हैज नॉट टेकन दिस लाइबिलिटी. सो विल दिस कम इन द पीसी. अगर कोई असेट नया फर्म नहीं लेके जाता तो वो पीसी में नहीं आता. सेम वे अगर कोई लाइबिलिटी भी नया फर्म नहीं लेके जा रहे, बिकॉज ये लाइबिलिटी तो अमित इज टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो पीसी में बैंक लोन विल नॉट कम. पीसी में बैंक लोन विल नॉट कम लाइक यू. तो इसका टोटल कितना है देखो, लाइक इट इज कमिंग, इज इट कमिंग दिस वन 145,900. तो सेकेंड वाले का टोटल क्या है, व्हाट इज द टोटल ऑफ द सेकेंड वन, 1,99,800. दोनों को ऐड किया तो यू विल गेट हाउ मच, दोनों को ऐड करने पे हाउ मच यू विल गेट, 1 lakh 1,45,900 plus 1,99,800, we are getting 3 lakh. Is it coming this much, 3,45,700? फिर ये हो गया. इसके बाद हम इसका टोटल तो विल बी द सेम बिकॉज ओनली वन इज देयर, ओनली वन लाइबिलिटी इज देयर. तो सेम लिखना पड़ेगा, 51,500 and 73,000. You will get purchase consideration. Purchase consideration कैसे मिलेगा, A minus B. So how much are you getting the purchase consideration, A minus B करो, are you getting 1,24,400? Are you getting this 1,24,400, 1,48,300? Just check whether you are getting this. See everyone whether आपको यही आंसर मिल रहा है जो मुझे मिला है, 124,400 plus 148,300. This total is 272,700. Yes. Are you getting the same amount PC का? Is it the same amount? Then means our, now what we will do, PC हो गया. Now our next step, सबसे पहले what we will do, हमें ना एक चीज कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर लेते। अब पार्टनर्स कैपिटल मीन्स इट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस रहेगा, तो बाई बैलेंस बॉट डाउन रहेगा। बाई बैलेंस बॉट डाउन में जरा देखो चारों का कैपिटल क्या है, 26,400, 33,600, 72,300 एंड 42,200। सो जो भी कैपिटल है, लेट अस राइट डाउन. So we will write down what is the capital of all the three. Capital is 26,400 given in the question, 33,600 in the question, 72,300 and 42,200 given in the question. Now let us see question में is there any reserve given, because reserve भी इनको ही मिलेगा, but question में कोई reserve है ही नहीं. There is no reserve given in the question. नॉट गिवन रिजर्व. सो इसके लिए अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप विच इज ऑलवेज कॉमन, रिजर्व नहीं है तो अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे और इधर लिखेंगे टू वेरियस असेट्स. एंड बिकॉज वी आर डूइंग इन द पीसी, मेरे पास एक शॉर्टकट है, मैं क्या कर सकती हूँ, सारे असेट्स को मैं कॉपी कर सकती हूँ and I will paste it in the realization account. सारे assets को लिखना है, सारे assets को लिखना है, और कौन से वैल्यू में लिखना है, बैलेंस शीट वैल्यू में लिखना है. तो कंट्रोल सी, I will write all the value which is given in the question. So सेम लिखना है. सेम वे अब मुझे सुमित ब्रदर्स का भी करना है, तो सुमित ब्रदर्स में भी जो भी असेट है old value पे. So old value means what, balance sheet value. So old value realization account में always it will be old value. So ये हो गया. Now I credit side में जाके by various liabilities. अब लाइबिलिटीज में भी जाएंगे क्वेश्चन में, देखेंगे कौन सा लाइबिलिटी है कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के, दो लाइबिलिटी है तो इसको कॉपी करेंगे एंड बैलेंस शीट वैल्यू में ही दिखाना है. सो हम यहाँ जाएंगे, वी विल पेस्ट इट एंड नाउ जो अमाउंट है यहाँ पे लिखेंगे. And same way, what is the other amount, this 51,500. So I will write here 51,500. and second वाले का है ही नहीं, there is no bank loan in Sumit Brothers. Now what we will do, पहला स्टेप तो हो गया, बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटी को क्रेडिट में किया. नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप, वी कीप इट सेम, क्या ट्रांसफ़र करना है, पीसी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफ़र द पीसी ड्यू. सो पीसी ड्यू ट्रांसफ़र करेंगे, तो पीसी का अमाउंट इज देयर अबाउ, हमने लिख के रखा है 124,400. and what is the other PC amount, अदर कंपनी का पीसी का अमाउंट क्या है, 148,300. सो व्हाट वी विल डू, पीसी भी ट्रांसफर कर लिया, पीसी कर लिया, लेकिन एक और इफेक्ट देना है, हम न्यू फर्म अकाउंट, लोन इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव टोल्ड दैट लोन नहीं लेके जा रहा है. लोन, सी आई हैव हाईलाइटेड हियर, Amit took over the bank loan, means new firm has not taken over bank loan. Bank loan has been taken over by the old partner Amit. तो इसलिए पीसी में लोन विल नॉट कम.
अगर कोई असेट या कोई लाइबिलिटी नया फर्म नहीं लेके जाता तो वो परचेज कंसिडरेशन में नहीं आता है. दैट्स व्हाई लोन हैज नॉट कम इन द पीसी. अंडरस्टूड? सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया. न्यू फर्म में एक ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा ना. वी हैव टू गिव अ ऑपोजिट इफेक्ट. सो पीसी का दूसरा इफेक्ट देना है. बाई न्यू फर्म हो जाएगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 1,24,000, सॉरी 1,24,400 and 1,48,300. This is also done. Now our next question, is there any asset not taken over by new firm? Is there any asset not taken over by new firm? Is there any liability not taken over by new firm? Yes. ये जो अमित ट्रेडर्स है उसमें जो बैंक लोन है उसको नया फर्म लेके नहीं गया है. दिस हैज बीन टेकन बाय अमित. अगर क्वेश्चन में बोल ऐसा नहीं बोला होता अमित नहीं तो दोनों को देना पड़ता, अमित एंड अनिल को. बट क्वेश्चन में स्पेशली इट हैज बीन टोल्ड कि हु इज गोइंग टू टेक द लोन. बैंक लोन कौन लेके जा रहा है? बैंक लोन अमित लेके जा रहा है. सो वी हैव टू गिव द इफेक्ट टू अमित का कैपिटल. तो ये बैंक लोन कौन लेके जा रहा है? अमित. तो बैंक लोन का इफेक्ट इज हियर. बैंक लोन क्रेडिट में है तो उसको सेटल करते वक्त यहाँ पे दिखाना पड़ेगा टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट. कितने का बैंक लोन है? बैंक लोन कितने का है? 12,000. हियर वी कैन ब्रैकेट में राइट डाउन व्हाट इज इट? बैंक लोन टेकन. Yes, taken the bank loan. तो बैंक लोन वॉज हियर, लेकिन उसको कैंसल करने के लिए किधर बताएंगे? क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट. गुडविल है क्या? वेरियस असेट में वही सब असेट आएगा विच इज देयर इन द बैलेंस शीट. कैन यू सी गुडविल इन द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट वेरियस असेट में all those assets will come which is there in the balance sheet. Old balance sheet. Is goodwill in the old balance sheet? नहीं है तो नहीं आएगा. Only those assets which are there in the balance sheet will come in the realization account. फिर what we will do, इसके बाद इसका ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा. टू अमित कैपिटल will, टू का ऑपोजिट will become by realization, by realization account. so realization account में अमित में दिखाना पड़ेगा 12,000 because it is there only अमित's capital. इसके बाद ये भी हो गया. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करो. क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट, close the realization account. Find out the profit loss. 51,500 plus 1,48,300, it is coming 1,99,800, 1,99,800. Same way 21,500 plus 12,000 plus 124,400 is coming 157,900. So दादा देखो, क्रेडिट इज हैवी और डेबिट इज हैवी. चेक द टोटल ऑफ द असेट, क्योंकि हमने पूरा असेट ट्रांसफर किया है. हाँ, इट इज 93,500 and 1,66,000. Means we can see that the credit side is heavy. We can see that our credit side amounts are heavy. So 157,900 and 199,800. तो प्रॉफिट है, क्रेडिट ज्यादा है मींस प्रॉफिट है.
तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? अमित, अनिल, सुमित, सुनील। पहले मेरे को बताओ, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट कॉलम? फर्स्ट कॉलम का प्रॉफिट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल का एक का तुम लोग ने बोला इस अमित इज 23,800। अमित 23,800 आया। आर यू श्योर इट इज कमिंग 23,800? नो, आई थिंक डू इट प्रॉपरली। See, it is coming, I guess it is coming 52,400. This one is coming 52,400 and this one is coming 33,800. Correct. 33,800. 33,800. चेक, देखो ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। व्हेन आप 1,57,900 से आप माइनस करोगे, सी यहाँ पे एक और चीज एक्स्ट्रा है 12,000। ये साइड में एक और चीज एक्स्ट्रा है, मतलब 93,500 प्लस 12,000 भी तो एक्स्ट्रा है जो तुमने शायद काउंट नहीं किया। मीन्स डेबिट साइड का टोटल कितना रहेगा? 93,500, 93,500 प्लस 12,000, 93,500 प्लस 12,000, दैट इज 1,05,500 माइनस minus 157,900. You are getting 52,400, क्योंकि ये 12,000 को शायद कंसिडर नहीं किया आपने, तो वी गॉट द आंसर। अब डिवाइड करो, अब ये डिवाइड करो पार्टनर्स में। 52,400 अमित और अनिल में डिवाइड होगा तो कितना मिलेगा? 26,200, 26,200 because both of them are the partners. And 33,800 will be divided among Sumit and Anil, sorry, Sumit and Sunil. Divide by 2 karo, you will get 16,900, 16,900. So is ऐसे we have got the realization profit, realization profit मिल गया। तो two partners, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में we can show what is it? It is profit. It is profit. So ये इसका दूसरा इफेक्ट देंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और इधर भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ये प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट मिला? 26,200, 26,200 एंड यहाँ पे 1 मिनट, 26,200 और यहाँ पे 16,900, 16,900, here also 16,900, 16,900. Now to close this account also, close this account also, क्या आ रहा है? ये अकाउंट को भी क्लोज करो। कितना अमाउंट आ रहा है इसको टोटल करने पे? 59,100 बराबर, इसको क्लोज करने पे 89,200, इसको क्लोज करने पे 33,600 प्लस 26,200, वी आर गेटिंग 59,800 एंड इसको क्लोज करने पे दैट इज हाउ मच इज द अमाउंट? 26,400 plus 12,000 plus 26,200. We how much are you getting? Are you getting 64,600? Is it correct? 64,600.
तो यही सेम अमाउंट्स हमें यहाँ पे भी लिखना है, सेम अमाउंट्स. फिर सेम अमाउंट विल कम हियर ऑल्सो, बिकॉज माइनस करने पे कुछ भी नहीं है तो सेम अमाउंट आएगा. इसको बोलेंगे बाय न्यू फॉर्म, और ये हमारा रहेगा बैलेंसिंग फिगर. करेक्ट, बैलेंसिंग फिगर. अब न्यू फॉर्म अकाउंट भी बना रहे, तो इधर आएगा टू बाई, सॉरी सॉरी, बाई लिखते टू लिखते, टू न्यू फॉर्म होना चाहिए ना, बिकॉज डेबिट साइड वी राइट स्टार्ट विथ टू. सो नाउ टू न्यू फॉर्म, इधर हो जाएगा बाई, हो जाएगा बाई, कौन से अकाउंट से आ रहा है, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कितने पार्टनर्स है, अमित, अनिल, सुमित एंड सुनील. ऑल विल गेट देयर शेयर. सो अमित को कितना मिलेगा, 64,600, 59,800 अनिल को, एंड सुमित इज गेटिंग 89,200, and Sumit is 89,200 and Sunil is 59,100. Now see whether this account is tallying. देखो ये टैली हो रहा है 124,400 और ये 148,300. देखो दोनों साइड में whether you are able to get the tally amount. Are you able to get the tally amount? Just see. Is it tallying? New form is tallying. तो यहाँ पे ही हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक एडिशनल पॉइंट आ गया. क्वेश्चन में एक एडिशनल पॉइंट आ गया है जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू कैपिटल 2 lakhs which has to be divided in the ratio 1 plus 1 plus 3 plus 3. 1 plus 1 is 2, 3 plus 3 is 8. So 1 upon 8, 1 upon 8, 3 upon 8 and 3 upon 8 में हमें कैपिटल को 2 लाख को डिवाइड करना है. So what we will do, we will go to the working note, we will go to the working note. वर्किंग नोट में जाके 2 लाख को डिवाइड करते हैं ये रेशो में. सो 2 लाख इंटू 1/8. 1/8 कितना आता है देखो. और एक चीज देखो, 2 लाख इंटू 3/8 कितना आता है, बिकॉज यही दो है, 1:1:3:3. तो 1/8 और 3/8 का क्या अमाउंट आता है, हाउ मच आर यू गेटिंग, 66 क्या आ रहा है, लेट मी ऑल्सो चेक. 2 लाख इंटू 1/8, मुझे 25,000 आया 1/8 में, एंड 2 लाख इंटू 3/8 में 75,000 आया. सो हमें कैपिटल मिल गया न्यू वाला 25,000. 1:8 मतलब 25,000, 3:8 मतलब 75,000. तुमको चाहिए तो मैं सारा ही लिख लेती हूँ यहाँ पे, बिकॉज अमित, अमित और व्हाट इज द नेम, अमित और अनिल दोनों का सेम अमाउंट, सेम रेशो है. अमित और अनिल का 2 लाख, 2 लाख इंटू 1/8 है, विच इज इक्वल टू 25,000. और सुमित और सुनील का 3/3 है, इट इज 2 लाख इंटू 3/8 which is coming to
75,000। तीनों का न्यू कैपिटल मिल गया, चारों का न्यू कैपिटल मिल गया। तो अभी पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो ओल्ड कैपिटल है वो ट्रांसफर करेंगे। तो बाई बैलेंस brought down, partners capital always has a which balance, credit balance। तो 64 600, 59 800, 89 200 एंड 59 100 ये मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो न्यू कैपिटल है जो मिला है वो लिखेंगे, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल। CD बैलेंस कैरीड डाउन, वो क्या मिला, अमित और अनिल का 1:3 के हिसाब से 25,000 here, 25,000 and here 75,000, here also 75,000, 75,000। So now you can see here क्वेश्चन में हमें न्यू कैपिटल भी मिल गया, ओल्ड कैपिटल भी मिल गया। ओल्ड कैपिटल तो इधर ही था, बैलेंसिंग फिगर, न्यू कैपिटल वी हैव फाउंड आउट। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी साइड में डिफरेंस आने दो, दैट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में इट वाज कैश अकाउंट, डिफरेंस इन द कैश अकाउंट। नाउ दे से डिफरेंस इन द करंट अकाउंट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट टैली ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारे पास है ना, इसको टैली करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड हैवी है। We can see that credit side is heavy for 2 partners, 2 partners का credit side heavy है और बाकी सब पार्टनर्स का क्रेडिट साइड ही हैवी है, या एक पार्टनर का डेबिट साइड भी हैवी है। 89,200 हैवी है और यहाँ पे देखेंगे तो 75,000 डेबिट साइड हैवी है। ये पार्टनर का 75,000 दैट इज डेबिट साइड इज हैवी। सो अब यहाँ पे देखो डिफरेंस जो भी आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आया तो बोलेंगे टू करंट अकाउंट, यहाँ पे डिफरेंस आया तो बोलेंगे टू करंट अकाउंट, और यहाँ पे डिफरेंस आया तो बोलेंगे बाई करंट अकाउंट, बाई करंट अकाउंट बैलेंस। समझा, जो भी साइड में डिफरेंस आएगा वो साइड में हम डिफरेंस को करंट अकाउंट में बताएंगे। सो टोटल क्या है, 64 600, 59 800 एंड 89 200। अब नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस यू आर गेटिंग हियर। 64 600 में से 25,000 माइनस करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, how much are you getting the balance of this one? 64 600 minus 25,000, aren't you getting 39 600 here? और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 59 800 minus 25,000, 34 800। same way 89,200 minus 75,000, 14,200। लास्ट में ये साइड हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी है, सो 75,000 minus 59,100 वी आर गेटिंग 15,900। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे जो करंट अकाउंट आया है, क्रेडिट साइड में जो करंट अकाउंट आया है, ये किधर जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस असेट में जाएगा, डेबिट बैलेंस है इसका, ये करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, सो इट विल गो, सी
द क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट साइड. ये अगर क्रेडिट में दिखा रहे मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ये असेट में जाएगा. इसलिए मैं तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ दैट ये करंट अकाउंट असेट में जाएगा और यहाँ पे जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया है that will go in the liability. That will go in the liability. So यहाँ पे जो आया है that will go in the liability. Now let us calculate the balance sheet. तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है? अमित, अनिल, सुमित, सुनील. उनका नया कैपिटल क्या आया है? 25,000. 25,000. ये कैपिटल फिक्स्ड है बिकॉज देर इज करंट अकाउंट गिवन इन द क्वेश्चन. वेन एवर करंट अकाउंट इज गिवन सो हम करंट अकाउंट को भी यहाँ पे लिखते हैं. करंट अकाउंट देखो ये साइड में जो भी कुछ आया वो लाइबिलिटी में आता है. ये साइड का कैपिटल हमने लिखा तो ये साइड का करंट अकाउंट भी लिखना पड़ेगा. करंट अकाउंट में हुज नेम इज देयर? अनिल्स नेम इज देयर. Means Anil, and who else is there? Anil and Sumit. उनका करंट अकाउंट का बैलेंसेस लिखो. What balances are you getting? 39,600, 34,800, 14,200. वन मोर थिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा. एक और करंट अकाउंट है. किसका करंट अकाउंट? डायरेक्टली लिख सकते हैं सुनील्स करंट अकाउंट. कितना है सुनील करंट अकाउंट? 15,900 जो हमने डायरेक्टली लिखा विच इज देयर इन द असेट. इसके बाद क्या स्टेप है? पीसी में जाओ, सारे असेट्स को कॉपी करो एज इट इज. सो सारे असेट को कॉपी किया एज इट इज. और अब क्या करेंगे? टोटल जो कॉलम है पीसी का, जो टोटल कॉलम है दैट वी विल राइट पीसी's टोटल कॉलम एंड वी विल गो डाउन. पीसी का टोटल कॉलम हो गया. इसके बाद जो लाइबिलिटी बचा है, लाइबिलिटी में आई थिंक वी हैव ओनली क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी में ओनली क्रेडिटर इज देयर एंड क्रेडिटर का टोटल अमाउंट कितना है? 73,000. तो यहाँ लिखेंगे 73,000. नाउ जस्ट टैली द बैलेंस शीट. जस्ट सी वेदर द बैलेंस शीट इज टैलिंग. See whether the balance sheet is tallying, whether you are getting the amount, whether you are getting the amount of 3,61,600. Here also 3,61,600. Correct? The same amount means our question is tallied.